तो सबसे पहला आप लोग का डाउट यही था कि अटेस्टेशन फॉर्म फिल कैसे करना है ना। तो गैस मैं थोड़ा सा, सब चलेगा तो हो गया, अभी नहीं चल पाएगा। गैस जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं आप लोग को बताता हूँ, आप लोग गैस जूम ज्वाइन कर लीजिए। मैं यूट्यूब की रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग एंड कर रहा हूँ। ओके, देर इज सम इशू इन द ओबीएस। ओके, अब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग का फॉर्म मैं आप लोग को शेयर करता हूँ ना, वन बाय वन चलते हैं। तो वहां से चल नहीं रहा है ये। ओके, सो गाइस आप लोग का सबसे पहला डाउट था अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये शाजू का ही अटेस्टेशन फॉर्म है। शाजू, प्लीज यू ओनली एक्सप्लेन लाइक व्हाट इज अटेस्टेशन फॉर्म एंड why, like, in the what are the problems being faced by students while filling the attestation form? Over to you. बताओ कैसे आप Actually, लोग क्या well, प्रॉब्लम। यस, आप लोग भी पूछते चलिए प्रॉब्लम्स। then now I will firstly I will say all the documents you are giving initially from the application documents, na, everything will be filed. So that is the most important case from starting where you are filling your application form. Na, from there itself you have to give what are the data you have. So that has to be maintained in all the documents. So once you are going for 11th, I think January 11th, if you are going, they have a file with your name. The file contains all the documents. The file contain all the your application form, whatever you were given in that interview. In interview also you will give some written everything that all are filed. Whatever you speak in that interview, everything will be filed in that document. So once you have to carry this attestation form. So before filling the attestation form, you once go through the application form, what you are filled in the application. So you try to maintain the same thing. If you are giving your work experience, how much work experience you are giving, you are maintaining the same work experience. Otherwise, if there will be a clash, they will easily find out. So you after filling the form, you must see whether whatever I am filled in the application form it is correct or matching with my attestation form. So that must to be you will be very careful about that. You are filling the attestation form. You take your own time and fill the attestation form very carefully because that is the primary data. Once you are going to the into that document verification area, na, you have only the attestation form. They will check all the data according to the attestation form. Your data of birth, your marks, where you are worked, your work experience, from where you are coming, everything will be there. So you have to very careful. And also about your family background, what your parents are doing, everything has to be in that attestation form. So before filling that, you will be very careful what you are filling, and then you have a proper proof for that. So that's the thing you have to maintain. Like so, actually, once you have two form, you have a form to fill in online, and you have a form to carry. Then once you are filling your form in online, they will already take the printout. Once you are going to that, they will have the printout. So no issue. You don't have to malpractice anything. So you have to match all the data same. That's the only thing. If any mismatch is there, then that will cause the loss of job also. ओके, सो अब गाइस आप लोग के क्या डाउट्स थे रिगार्डिंग अटेस्टेशन फॉर्म, ये बताइए, क्योंकि अटेस्टेशन फॉर्म में आप लोग को वही भरना है जो आप लोगों ने जो इंटरव्यू के फॉर्म में भरा था, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, जो डेटा दिया था वही आप लोग को अटेस्टेशन फॉर्म में डालना है ना। इसके अलावा कुछ मत डालना, ठीक है गाइस। ओके, तो आप पूछो आपके क्या डाउट्स थे अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर, बोलो। अरे बोलिए भी, अब बोल नहीं रहे आप लोग। यस, सर एक तो मेरा डाउट था सर, वीडियो जैसे ऑन करके आइए, सर वीडियो ऑन करके आइए। वीडियो ऑन करके आऊँ एक मिनट once। हम्म,
दिख रही मेरी वीडियो सर? हाँ दिख रही है, गो ऑन। अच्छा सर, उसमें एक मेरे से इशू ये हो गया था कि जब मैं फॉर्म फिलअप किया था तो 12th का पासिंग आउट ईयर थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया था, लाइक एक डिजिट एक साल आगे बढ़ गया था। तो क्या मैं प्रिंट करके उस पीडीएफ को एडिट करके ही लेके चला जाऊं? लाइक पीडीएफ भी तो एडिट हो ही सकती है। No. You don't have to do that. You don't have to do that. Once it is filled, you have filled the same thing. You go to the site and confirm with the HR. There are many नहीं सर, HRs are there. You confirm, एक्चुअली ma'am, सर, I am filled that wrongly. यस यस सर, सर स्पीक। हेलो। गो ऑन टेल। हाँ तो सर मैं वही कह रहा था कि एक्चुअली मेरा पासिंग ईयर मैंने गलत डाल दिया था, मतलब एक साल एक्स्ट्रा डाल दिया था। तो क्या मैं इस पीडीएफ को प्रिंट करके इसको एडिट करके कम कर लूं? मतलब इस पे कोई ध्यान देता है? बस मेरा इस टाइप का सवाल था, क्या इस पे कोई ध्यान देता है सबसे ज्यादा या अटेस्टेशन लाइक? सबसे ज्यादा जो ध्यान जाता है वो अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर जाता है, जब पुलिस नहीं वेरिफिकेशन नहीं, हो। लाइक मैं हार्ड में सही कर लूं तो जो सबमिट हुआ छोड़िए, अगर मैं जो प्रिंट करने के बाद इसको सही कर लूं तो ऐसे एडिट करके, क्योंकि पीडीएफ फाइल में एडिट तो कर ही सकते हैं, ये जो फाइल है इसको एडिट तो कर ही सकते हैं सर। वैसा मत करिए, वैसा मत तुमने करिए। Actually, तुमने why पासिंग you आउट want to ईयर edit जो it? That's इंटरव्यू my से question. पहले जो फॉर्म में भरा हुआ है, या अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जो तुमने फॉर्म भरा है? नहीं, अभी तो उसमें वही डाटा है, वो चेंज चेंज नहीं हो सकता ना, अभी तो वही डाटा है। लाइक जो मैंने ठीक है, फॉर्म में डाला था वही डाटा ग्रैब किया ना कुछ उसने। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटी है, ज्यादा इसमें इशू मत करो। ये सब चेंज मत करो, वहां जाके बोल देना, वो लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और ये सब वहाँ पे भी इंसान ही है, वो समझ जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। कि लाइक एक डिजिट 5 का 6 हो गया था सर, वही पासिंग ईयर, वही थोड़ा सा इशू कोई था। दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खराब नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जाके बता देना, उसका कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके सर, ठीक है। You नेक्स्ट। don't do anything. That actually a lot of HRs are there. If you are doing anything mistake, you generally go to them and say, "Ma'am, this is what I did, so I want to correct." In the on the spot, they will help you. So you don't do any unwanted things. Then they catch me. It will cause a problem. ओके ओके, तो सर फिर मैं वही रखूंगा, फिर वहां पे जाके बात कर लूंगा बस। There are many HRs are there. They are in average zones only. They will hear all your problems. You can gently go and tell, "Sir, this is what I did. This is what I have to do." They will give the proper solution. There is no nothing to worry. ओके, नेक्स्ट डाउट गाइस, अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर बताइए। हेलो हेलो सर। बोलो। अटेस्टेशन फॉर्म में वो परसेंटेज आता है क्या, बैचलर्स का जो होता है वो? एक मिनट बता दे रहा हूँ। बैचलर्स का परसेंटेज आता या है, यहाँ आता पे, है वो। बट यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया है। एग्जामिनेशन पास्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वहाँ पे बी में आप जो भी है ना, मैं हाँ आपको हाँ देख लीजिए। एक मिनट दीजिए, मैं शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन। ये देखिए, दिखा आपको? ये देख सकते हैं आप। दिखा? ओके। यस सर, उसी में ये है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में ना मल्टीपल कन्वर्जन होते हैं परसेंटेज के। हाँ। तो मतलब वो कैसा, मतलब हम दिखाए कि ऐसा? Then actually this is you have to already submitted in the interview time also, na? What you did in the या interview time? what during the interview I told them कि like there are multiple percentage conversion formulas for Mumbai University. So I Then told there them is from all percentage formula it is about 60% meeting the eligibility criteria. So then that's there what is my no doubt issue. is. Yeah. There is So no like, issue. They already have the data what you give in that interview, na? So there is yeah. you can go and say that same reason they will accept it. There is nothing to worry. Sir, do we have to fill now if like if there is a percentage change in the calculation? If like instead of 67 it is 64% or 64 67, so do we need to upload it in the employment form that we have to fill before 10th of December, or do we just leave that blank? Can you come again? I am not getting that. What you are So saying? basically if there is a change during the calculation, like there was a mistake made by the university in the percentage, the CGPI percentage converter, if Hmm. one writes 67%, but the percentage is 64%. Then what is there in your certificate? Certificate, it is not written. We have to apply formula. It comes around 64.38%. But I used an online calculator during the form filling. And I told the HR during interview that there's a mistake in the online calculator. And there are now changes made in the percentage calculation. No, there is no issue. So he There said, is no issue in that much. You can if there yeah. is anything happen, they will give some time. There is no issue on the percentage calculation.
If you have the proof Okay. of the percentage, you can give and submit. Otherwise, there is no issue. Okay. Yes, sir. So should I fill the new percentage in the employment form, or should I just leave it blank and just submit it without the percentage? We have to write the educational qualifications, right, in the acceptance offer form. Yeah, you can write the whatever you written the previous thing, now that you can manage the same thing. Nothing. But would that they will not consider that as a mistake? Like I've told them already that No, has been a no. mistake. They will not consider that as a mistake. So I'll tell them that this was the mistake. I wrote it, and again, can you please clarify with the proof? Okay, they will Okay. correct it. No issue. Okay. Thank you With so much. whatever you are giving on the 11th only, they will enter in the system. Okay. So then you at the time you can say that it is a wrong, it is goes wrong. Then you can say to them, they will enter the correct value. No issue. Okay. Thank you so much, sir. No. वीडियो ऑन करके आइए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग का लास्ट डेट कब है फॉर्म फिलिंग का? कल है ना? यस सर, कल ही है। ठीक है, ओके, ये हो गया लास्ट डेट का। दूसरी चीज, और कोई डाउट्स है अटेस्टेशन फॉर्म को लेकर, पूछ लीजिए। सर क्लॉज 11A में जो लिखा हुआ है उसमें प्राइवेट फर्म में कोई मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम किए हैं, उसका कुछ भरना है क्या है? इफ यस, उसमें भरने के लिए कुछ ऐसा मतलब आ नहीं रहा है, मतलब उधर टाइप नहीं कर सकते। इवन फॉर्म में भी जो प्रिंट आउट आ रहा है उसमें भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब बहुत छोटा आ रहा है, उसमें कैसे करना है मतलब? I am not getting a come again. What you are saying? Sir, in the clause 11A of the attestation form, Okay. there is a like declaration if I have joined any government, quasi-government, and there is a lot of categories of the previous organization. In that category, Yeah. is Okay. private organizations are private organization applicable? And if yes, then how to fill that? Because in the online form there is no provision to type anything in there, and even in your print I can see that the space is too little to give the full details as mentioned, like the address and stuff like that. Actually, that 11th A is required only for if you are working in government organization. Okay. If you are working in government organization, you have to give your data, all your data there. Otherwise, there is no need of. If you are working in private organization, there is no need of 11A. You will give all your working experience in 4 itself, not 4. Sir, actually, in the last two words that it is written in 11A, like any firms or institutions, just before the question marks. Actually, while you are coming to, actually main thing is if you are joining in 11th, correct na? Hello? Yes, sir. So all of you have to be free on 11th. That's the main important rule. You don't have to commit with any other companies. That's the thing. If you are suppose if you are in 3 months notice period, means you don't have to join in HPCL without completing the notice period. That's the thing. Don't have to be time with any private organization or any government organization at that time of joining to HPCL. Once you join to HPCL, you are not part of any other company. Yes, sir. Thank you. Okay. That's the meaning for that. Okay. Any other doubt? I just want to see the form filling methodology. में किसका डाउट था ये? स्वतंत्र का था, मतलब फॉर्म फिलिंग। अब हम आपको बताइए, अब वो भी फॉर्म फिलिंग हम कैसे करके देंगे आपका स्वतंत्र? वो तो आपको खुद ही फिल करना है ना, राइट? है ना स्वतंत्र? IIT मद्रास में हो आप? No. Arre bro, I just asked because I just wanted to see the session. I think there is no particular question I wanted to ask. Just a session I wanted to see. That's why. ठीक है। अब आप लोग को ज्वाइनिंग डेट क्या है? पहले ये बताइए, ज्वाइनिंग डेट क्या है आप लोग का? For everyone it's 11th Jan. 11th जनवरी। ओके, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं इंडक्शन सेशन की ओर, ठीक है सर? शाजू ओझा सर, इंडक्शन सेशन के बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए, कहाँ पे होता है? आप लोग को पुणे बुलाया होगा, है ना, निगड़ी के पास, राइट? है ना? निगड़ी में बुलाया होगा। सर कोई सिम्बायोसिस कॉलेज करके उधर कहीं बुलाया है। सिम्बायोसिस। Hello, I have one doubt. Yes, regarding एक के बाद एक चलते। Regarding attestation form only, is there any last date for that? Tomorrow.
No, tomorrow? for joining Tomorrow? form, tomorrow is the last date. For Yes. attestation form, No. there is for attestation form there is nothing written like 10th is the last date. So that's anybody can clear that. Actually, attestation form, there is no last date actually. You have to get the printout and give the signature. At the time of going to joining now, you have to bring the 5 copy. That's the only thing. So there is no Okay. last date for attestation. For Okay. joining form, there is a last date. Tomorrow you have to fill the joining form. Right. Okay. Attestation form में Thanks. अभी Hello, आज I have a yes. doubt. There were two links in our mail. Like we didn't say yes exactly at any point. Like the mail was कि आपको यहाँ पे yes fill करके देना acceptance में. तो like just हमने वो दो लिंक पे submit कर दिया है तो uh, is that a yes from our side? Does that submission means a yes from our side regarding the offer of Actually, there is a background thing. One, because there's a joining form is there, na? That you will mention when you are going to join. Okay, So okay. if you are going to join on 11th means in your offer letter, your date will be mentioned there. So अच्छा, they will take some time to prepare your offer letter. They will give your offer letter also. offer letter is So, mailed to our address. no, that is not offer letter. That is just a confirmation. Okay. Suppose if you are going on 11th, Uh-huh. our CMD will be signed to your offer letter. Everybody will be signed on your offer letter. So at the time of, I think you are joined on 11th, 13th or 14th, you will get your offer letter. On that day, that it will mention you will join on 11th. So for that only they are taking that. Okay, we get the offer letter in the induction program itself. Yeah, you will get the offer joining letter letter in मिलेगा the आपको program. बिल्कुल Second or third day you will get. एक होता है Okay, I was thinking that offer letter is mailed to us and we signed somewhere. That was made out. जब आप लोग का डॉक्यूमेंट हाँ, वेरिफिकेशन प्रॉपरली कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है ठीक है ये अच्छा, आपको ऑफर लेटर आ गया ज्वाइनिंग लेटर अलग होता है ऑफर लेटर अलग होता है ठीक है ज्वाइनिंग लेटर वहीं पे मिलेगा या हमको वही मेल? मिलता है वही ओके, मिलता है जब आपका डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए कि किसी ने वहां पर ओबीसी सर्टिफिकेट का दिया होगा है ना मतलब देते बच्चे राइट अंडरटेकिंग यस कैटेगरी सर्टिफिकेट का वहां पर रिटर्न में देते हैं कि जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम प्रोड्यूस करेंगे रिलीविंग लेटर होता है राइट बहुत सारी चीजें होती है तो जब वो क्लियर होंगी वो डॉक्यूमेंट क्लियर होंगे आपके डिग्री जो फिर से आपका डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा प्रॉपरली 3-3 4-4 बार डीवी चेक होता है अभी मतलब आप जब डीवी ज्वाइन करने के बाद डीवी क्लियर होने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर एक अलग आता है ज्वाइनिंग लेटर ठीक है ओके तो ओझा सर मैं आपको पूछूंगा तो हो गया अटेस्टेशन फॉर्म का क्लोज करे टॉपिक यस सर सर आई हैव वन डाउट बोलो टाइप कर दो आप लोग के जो भी डाउट्स है तो फिर मैं ले लेता हूँ आप लोग के डाउट्स ना आप लोगों ने फॉर्म में भी नहीं भरा है गूगल फॉर्म किस लिए दिया था ये इसलिए दिया था ना ताकि आप लोग अपने डाउट्स लो सर मैंने सर अभी अभी ग्रुप ज्वाइन किया है एक्चुअली अच्छा ठीक है बोल पूछो सर एक्चुअली मेरा ये डाउट था कि वहां पे एक ऑप्शन था कि मतलब व्हाट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल यू प्रोड्यूस एक प्रोविजनल था एक फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट था सर मैं मतलब अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ 2024 में ही तो मैं उसमें प्रोविजनल डाला हूँ तो मेरा प्रोविजनल अगर मैं दिखाता हूँ वहां पे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना Yeah, there is no issue. If you have professional certificate, you can submit that. Then you can say that I'm not yet graduated. I am graduate ceremony is not yet done. They will accept it. There is no issue. Okay, sir. Okay. And sir, relieving acceptance of resignation, I have mailed to HPCL. So that is closed, na? That case is closed, right? No. Actually, to all of you, if you are working in any organization, you have to join with your relieving letter. That's must one. You have to go with your relieving letter. Otherwise, they will not accept anything. Okay, sir. Okay. सर एक डाउट था सर ये हेलो मैं एक मिनट मैं थोड़ा सा इस पे आना चाहूंगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा ना या फिर डिग्री इज कंपलसरी मैंडेटरी बिकॉज लास्ट ईयर तो ठीक है प्रोविजनल से हो गया था वर्क राइट बट इस साल डिग्री मैंडेटरी है या नहीं है प्रोविजनल वाली सर जो ईमेल है ना उसमें लिखा हुआ है मैं उसी वजह का डाउट भेजा तो आपको ईमेल का स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने वहाँ पे फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट लिखा है उन लोगों ने और करो नहीं तो 24 वाला तो एलिजिबल है ओके 25 वाले एलिजिबल नहीं होगे 24 वाले एलिजिबल है डोंट वरी ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं है ओके ओके सर या जो ओके
सर तो एक होगा डाउट सर, था रेजिग्नेशन प्रूफ का। एनोनिमस हेलो नाम से आइए अपने, और सर, वीडियो ऑन प्रियस करिए। प्रियस बोल रहा। पीयूष, सर ये कह रहे थे, ये पूछना था कि उसमें लिखा है रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस फॉर्म जमा करना है आपको 15 के पहले। तो वो केवल एक्सटेंशन वालों को जमा करना है कि सबको करना है कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में? अच्छा आप वर्किंग हो राइट, है ना? हाँ, वर्किंग है। तो आप वर्किंग हो तो क्या आपका, आपने रेजिग्नेशन उनको सबमिट किया तो वो फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, जो भी मेल आप डालोगे तो मेल का नहीं, रेजिग्नेशन। मेरा ऑनलाइन रेजिग्नेशन होता है, तो ऑनलाइन ही होता है, तो कुछ ऑफलाइन नहीं होता है। तो हाँ अभी उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं, तो इसमें कह रहे हैं 15 तारीख के पहले आपको रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस जमा करना है। वो चीज पूछनी थी, वो एक्सटेंशन वालों के लिए है कि केवल? अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक होता है जैसे आप अप्लाई करते हो है ना, तो आपके कंपनी ने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया क्या, उसका भी एक उनसे मांग लीजिएगा, जो भी आपकी कंपनी में आप वर्क वो कर रहे मना हो। कर रहे हैं, वो कंपनी पॉलिसी कर रही है कि लास्ट डे पे ही मिलेगा आपको लेटर लेटर में। तो एक्सटेंशन अप्लाई कर दो थोड़ा सा, यस नहीं, ओजस मेरे ने बोलेंगे कुछ। नहीं, मैंने तो डाल दिया रिजाइन, और 5 को मेरा आखिरी डे भी है, तो वो हम रिलीविंग लेटर लेके जा भी सकते हैं हम 11 को। लेकिन अभी 15 के पहले जमा करना मैंडेटरी है क्या वो? प्लीज प्लीज। Actually, only one thing. There is only one common thing. If you have relieving letter on before joining, you can go. Otherwise, you can wait and you can join in the next batch also. That's the thing. Once you are planned to join on 11th morning, you have the relieving letter. If you हाँ, are वो हो not able जाएगा। to produce a relieving letter, don't go. Don't नहीं go. नहीं, Otherwise, it वो is 5 waste. को मिल Better जाए। you can join the next नहीं नहीं, next month also. Actually, नहीं वो he's 5। trying to ask in mail it is written like in case of extension, it is we in case of extension we required to mail your resignation letter and your company should accept the resignation letter. So even though we are going on or before 11th, so does these working people need to provide mail this resignation letter or not? Yeah, तुम बस actually, एक if you तुम suppose बस एक अंडरटेकिंग दे if दो कि मैं जब भी आऊंगा तो रेजिग्नेशन लेटर, मेरे को रिलीविंग लेटर मिला हुआ होगा, और मेल कर दो उनको, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जिस दिन तुम पहुंचे रहोगे उस दिन तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे पास होना चाहिए उनको दिखाने के लिए। जो एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं वो भी, उनको तो मेल करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं तो मतलब मत मेल करो, उस दिन होना चाहिए तुम्हें। अगर अपलोड करना है रेजिग्नेशन लेटर तो उसमें अंडरटेकिंग दे सकते हो कि मेरी कंपनी की पॉलिसी ऐसी है और मेरे को इतने दिन में लगेगा, तो मैं 15 से पहले सबमिट नहीं कर पाऊंगा। बट मैं जिस दिन भी आऊंगा उस दिन, जब भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट होगा। ओके। सर, मैं तेजस बोल रहा हूँ। मैं एक फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, एक एमएनसी में। और मैंने रिजिग्नेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस 0 लिख दिया है एचपीसीएल में। जस्ट मैंने ज्वाइन किया था कॉलेज पास आउट करने के बाद, मैंने एचपीसीएल के एक्सपीरियंस लिस्ट में 0 डाला है। अगर पर प्रेजेंट हमारी कंपनी के नॉर्म्स के अनुसार मुझे 9 जनवरी को तो 15 जनवरी को मुझे रिलीज करेंगे। पर मुझे तो यहाँ कहीं लिखा हुआ मतलब मैंने एचपीसीएल में तो कहीं लिखा नहीं है कि मैं इतना एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, मैं एज अ फ्रेशर आ रहा हूँ वहाँ पे। तो क्या मुझे भी वो रिलीविंग लेटर वगैरह सब अप्लाइड होंगे? अगर तुम्हारी पहली बात तो एमएनसी है ना, तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट नहीं, हो प्राइवेट है। दूसरी बात, तुमने मेंशन नहीं किया है अगर एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में, तो आगे भी बताने की जरूरत नहीं है। वहां से रिजाइन करके यहाँ पे आ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं उनका नोटिस पीरियड कंप्लीट नहीं होगा अगर मैं जिस दिन ज्वाइनिंग है उस सेम है। डेट पे अगर आ जाता 11 हूँ? तारीख को तुम ज्वाइन कर पाओगे? हाँ, अगर देखो मेरा उनके हिसाब से मेरा नोटिस पीरियड 15 जनवरी को कंप्लीट होता है। उनके अगर हिसाब मैं से नहीं एचआर है। को मना ट्राई तो कर सकता हूँ उन्हें कन्विंस करने का कि मुझे 11 को जाने दो, पर अगर वो नहीं माने। नहीं माने तो फिर तुम एक्सटेंशन ले लो कि मैंने इंटरव्यू, जब एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरा था उसके बाद मेरी जॉब लगी थी, मैं मेंशन नहीं कर पाया उसमें, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में, तो अभी मेरे को सर, एक्सटेंशन एक चाहिए। और पॉइंट है। मुझे जरूरी है मैं नोटिस पीरियड का देखिए आ जाऊँ क्या? अगर मैं प्रेजेंट एमएनसी में नोटिस पीरियड नहीं देता हूँ तो क्या कर लेगा एमएनसी मेरा? वो तो तुम ही बता पाओगे। नहीं मतलब क्या, Bro, Tejas, मैक्सिमम क्या होगा? I'll answer you this वो कुछ नहीं question. कर Bro, पाएगा। you buy देखो बट तुम्हारा एक यूएएन बना होगा, मतलब तुम्हारे में पीएफ जाता होगा। uh, हाँ सर। come.
वो मालूम चलता है कि दो जगह से एक बार में नहीं जाना चाहिए। जैसे तुमने जनवरी में ज्वाइन किया तो एचपीसीएल का भी पीएफ जाएगा और ये तुम्हारे पिछले एमएनसी का भी पीएफ जाएगा, वो दो जगह से नहीं जाना चाहिए। ओके, बस पर्टिकुलर वही एक पॉइंट है। वही एक पॉइंट है, उसी से मालूम चलता है, यूएन में दिखता है। ओके। सर ओके सर। वेट, सर मेरा बोलो किसका है अटेस्टेशन? एक्चुअली मेरा नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है। तो उसका क्या कुछ जाएगा ज्वाइनिंग का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्सटेंशन लो ना आप, एक्सटेंशन तो मिलता है, सारे कंपनी में एक्सटेंशन मिलता है। वे तो पहले तो समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है। ओके, वीडियो ऑन करते नहीं हो, कौन बोल रहा था, किसका डाउट था ये? सर मेरा शुभम। तो वीडियो ऑन करके आओ ना, हमको भी समझ में आना चाहिए कि कौन सेलेक्ट है, कौन से ऑफिसर से, राइट? है ना? बार बार अगर यही शब्द बोला तो कैसा लगेगा बताओ आप, राइट? ठीक है, तो एक्सटेंशन अप्लाई करो, होगा एक्सटेंशन अप्लाई, डेफिनेटली होगा, है सर ना? 3 मंथ्स का उतना मिल जाएगा, लाइक 3 मंथ्स है मेरे कंपनी में। I think 3 months they will give. I am not sure about, but definitely 1 month they will give. They will take you up. You are joining on 11th. Next batch will be on February 11th. So if you if you are not able to join on January 11th, you can join on February 11th also. Actually, I'm not sure about that 3 months extension they will give or not. I'm not sure about. You can directly mail to the HR also. They will confirm. But 1 month they will give. I am sure about that. Up to February they will give. आकाश का एक डाउट है Okay. सर, इन सर्टिफिकेट व्हाट वी हैव टू चूज, फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट एज बोथ आर अवेलेबल इन ऑप्शन। तो आप आकाश, वॉट एवर यू हैव अवेलेबल, लाइक फाइनल सर्टिफिकेट्स यू हैव और मार्कशीट यू हैव, वॉट एवर द डेटा यू कैन पुट, यू कैन चूज दैट। ओके, ठीक है, नॉट एन इश्यू इन इट। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद कितने दिन के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है? तुरंत ही होती है। ओके, राइट, ओके। तो चलते हैं अब हम लोग सर, मेरे ख्याल से I am in final year MTech. Will extension be provided for the same or will it be converted to part time? Also, how it part time MTech while working? Is it difficult? सर पार्ट टाइम होता है क्या? पहले तो मास्टर्स, जो भी बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं सेकंड ईयर में हो गया अपना, लगभग लगभग मेरे ख्याल से जो भी सेकंड ईयर के बच्चे हैं, है ना, उन लोग का तो प्लेसमेंट्स का भी सीजन चला गया है, राइट? 2020, मतलब अभी जनवरी में पास हो गए तो 3 महीने का बाकी रहेगा। तो सर इन लोग को 3 महीने का कैसा होता है? देखो गाइस, आप लोग तो कर सकते हो ना गाइड से बात करके, जो सेकंड ईयर वाले हैं वो लोग गाइड से बिल्कुल बात कर सकते हैं और अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। काफी हर आईआईटी में होता है ये, हर आईआईटी में होता है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास में तो डिग्री आप लोग को डिप्लोमा, मतलब 1 साल 2 सेमेस्टर किया आप लोगों ने। आप अगर आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी दिल्ली में हो तो पहले 2 सेमेस्टर करने के बाद आप लोग को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिल जाता है। ठीक है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। और अगर जिन्होंने 3 सेमेस्टर कर दिया है, 3 सेमेस्टर प्लस ओपन सेमिनार, ओपन सेमिनार 3 सेमेस्टर अगर आप लोगों ने बिता दिया आईआईटी में प्लस ओपन सेमिनार, तो आप लोग गए डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो। टोटल 18 मंथ, 18 मंथ टोटल आप लोगों ने बिताना चाहिए आईआईटी में। आईआईटी कानपुर की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, आईआईटी कानपुर में भी ऐसा होता है। ओके, कोई इशू नहीं, आपके गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? आईआईटी के बारे में मैंने बता दिया हूँ। आप किस आईआईटी से बात कर रहे थे, जिसका भी डाउट था? ये कौन सा आईआईटी से आप? संतोष। और जो सेकंड ईयर में है, तो मैंने आपको सेकंड ईयर वाला जो फर्स्ट ईयर में है रोपर में, तो रोपर में बात कर लो। रोपर तो वैसे भी छोटा आईआईटी, निचला आईआईटी है, वहां पे भी मेरे ख्याल से डिग्री मिल जाएंगी। गाइड के ऊपर बात कर लो। कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? कोई बात नहीं यार, वैसे भी ठीक है, सेकंड ईयर में तो बात कर लो, हो जाएगा आपका, डिग्री भी हो जाएगा कंप्लीट, डोंट वरी, गाइड से बात कर लो। ओके, आपके हाथ में जॉब है, सेकंड ईयर में वो प्लेसमेंट नहीं हुआ अभी, प्लेसमेंट नहीं हुआ। मनीष हो गया फर्स्ट, आप आईआईटी दिल्ली फर्स्ट सेम से हो, मुझे पता है, आप तो हमारे पेड स्टूडेंट हो, तो कोई दिक्कत नहीं मनीष, एचपीसीएल में आ जाओ। वैसे भी मतलब आई मीन टू से कोई मतलब अब वैसे भी आप लोग को ना आपको डिप्लोमा मिलेगा ना डिग्री मिलेगा, है ना? आपका तो कोई मतलब ही नहीं मनीष, राइट? तो कोई बात नहीं संतोष, आप नहीं बैठे तो आपका एचपीसीएल हो गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, आप आ जाओ एचपीसीएल में, आपके जूनियर से मिलो, शाजू से, सॉरी आपके सीनियर से मिलो, राइट? सुपर सीनियर से मिलो, यहीं पे है। ठीक है, नेक्स्ट, तो चलते हैं सर। हेलो हेलो संतोष। संतोष, एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे को मालूम है कि हमारा
1.5 ईयर्स तुमने दे दिया है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तुम्हारा एमटेक तो अभी जुलाई तक जाएगा, तो उतना तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, और उस एक्सटेंशन के चक्कर में जो समावेश होता है काफी अच्छा होता है शुरू शुरू में, वो तुम्हारा छूट भी जाएगा। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, ये तुम पार्ट टाइम कराओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और टाइम भी लगता है उसमें। तो वैसे भी अभी तुम्हारा क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन और डिसर्टेशन का काम चल रहा होगा, तो तुम अपने गाइड से बात कर सकते हो, अपना स्टाइपेंड रुकवा लो जनवरी से, कि मेरा स्टाइपेंड रोक दो मेरे को सिर्फ क्योंकि अभी तो क्लासेस भी नहीं करनी होती, मैक्सिमम तुम्हें टीए में दिया होगा, तुम्हें असिस्टेंटशिप करना पड़ रहा होगा। तो बेटर ये है कि अगर तुम्हारा गाइड सपोर्टिव है तो उससे बात कर लो कि सर मैं आके प्रेजेंटेशन दे दूंगा, और उसके बाद आप ऐसा मेरा मैनेज कर दो, पार्ट टाइम मत कराओ, मैं आके प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ऐसा कर सकते हो। और वो नहीं मानता है तो पार्ट टाइम करा लेना। मेरे साथ एक पीएचडी कर रहा था आईआईटी गुवाहाटी में, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो भी अभी पार्ट टाइम में उसने कन्वर्ट करा लिया, क्योंकि पीएचडी उसका 2 ढाई साल ही हुआ था, तो उसको करवाना पड़ा। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। दूसरा, एमटेक में प्रमोशन एमटेक प्रमोशन के लिए हेल्प करता है। मतलब एमटेक प्रमोशन के लिए ऐसे हेल्प करता है कि मान लो कि साल तुम्हारी रेटिंग 3 आई, तो तुम एक साल उस अपने डिग्री को यूज करके वो रेटिंग 2 कर सकते हो, 2 को 1 कर सकते हो। इतना ही हेल्प करता है वो भी, मेरे हिसाब से तुम जॉब में आने के बाद कोई मास्टर्स करते हो तब हेल्प करता है। पहले ऐसे करके आ रहे हो तो ज्यादा हेल्प नहीं करता। तुम्हारा तो अभी फर्स्ट सेम ही है, तुम्हें पार्ट टाइम भी शायद अलाउ नहीं करेगा आईआईटी, क्योंकि तुम्हें एक साल तो वहीं पे क्लासेस करनी पड़ती है। कम से कम 1.5 साल होना चाहिए। 1 1.5 साल होना चाहिए, फिर पार्ट टाइम कन्वर्ट होता है। 18 मंथ। फर्स्ट सेमेस्टर में तो अलाउ नहीं करेगा। 18 मंथ का एलिजिबिलिटी है हर आईआईटी में। सर क्या, सर ड्रीम वही था, क्या करूँ, कुछ हो सकता ड्रीम है? क्या था, एमटेक करना ड्रीम था या प्रमोशन लेना? ठीक है सर, तो आरएनडी ओके, कोई बात नहीं। एनडी में ऐसे हमारे यहाँ एक हमारे बैच में एक जर्मनी से मास्टर्स करके आई थी, तो उसने रिन्यूएबल एनर्जी में किया था। तो वो तो हमारे में मतलब एचपीसीएल तो इतना रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, बट आरएनडी के लिए वो लोग अलग से ही लोग लेते हैं, हमारे में से लेके नहीं जाते आरएनडी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का। बिल्कुल नेक्स्ट सर। बैच में ऐसा ऐसा हुआ तो शाजू बता पाएगा कि नेक्स्ट बैच में ऐसा कुछ हुआ था क्या। मेरे बैच में तो ऐसे किसी को आरएनडी नहीं भेजा था, उनको अलग से ही आरएनडी कहा था। बिल्कुल, उसमें सर क्या है, एचपीसीएल आरएनडी में बेसिकली वो लोग मास्टर से उठाते हैं ना, एमएस के बंदे उठाते हैं, मास्टर एमटेक के बंदे उठाते हैं। अभी आईआईटी मद्रास में 3 बंदों को उठाया है, एक एमएस के केविन को उठाया है, कि वो केमिकल से ही एचपीसीएल में। तो 3, ये ऐसे ऐसे हर आईआईटी से वो लोग आरएनडी के लिए उठा लेते हैं। तो मास्टर्स वाले बच्चे होते हैं उनको आरएनडी में रखा जाता है। वो मोस्टली आप लोग को एज एन इंजीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए रिक्रूट करते हैं, आईओसीएल के जैसा हाँ नहीं। हाँ। को ले आओ, किसको मार्केटिंग में भेजना मार्केटिंग को भेज दो, इनका सेपरेट सेपरेट है। ओके। आरएनडी कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसका अलग है, रिक्रूटमेंट बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग डोमेन है वो। ठीक आप है। चाहो तो कुछ सारे एक्सपीरियंस में लेकर जा सकते हो वहां पे, बट शुरू में पोस्टिंग मेरे हिसाब से नहीं मिलती है, मेरे बैच में तो नहीं मिली। नेक्स्ट बैच का मालूम। बिल्कुल। नेक्स्ट सर। ओजा सर मेरे को एक डाउट है। हम्म। मैं अभी एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ, तो मैंने 7 को रिजाइन दिया था, तो मेरा जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी है। हम्म। इसमें 15 फरवरी ऐसा कोई डेट बढ़ सकता हूँ? आपका आवाज बीच में कट गया है, आपको हो रिपीट गया। करना पड़ेगा। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मेरा लास्ट डेट है जो जो मैंने नोटिस पीरियड दिया है उसका 6 फरवरी है। हम्म। तो उसके बाद भी एक वीक ऐसा कुछ लग जाता है, 1 वीक या 10 15 दिन लग जाते हैं रिलीविंग लेटर लेने में कंपनी से। हम्म। तो मैं 15 फरवरी ऐसा है, 20 फरवरी ऐसा डेट बढ़ सकता हूँ ज्वाइनिंग डेट? हाँ, क्योंकि अभी 11 जनवरी को अगर पहला सेशन शुरू हो रहा है समावेश का, तो वो 1.25 महीने मतलब 40 डेज शायद का अभी होने लगा है। तो पहला बैच तो उसमें निकल जाएगा, फिर नेक्स्ट बैच में तुम्हें बुला सकते हैं। तो मैं मतलब उसके लिए कौन सी डेट भरूँ, मतलब 15 भरूँ या फिर 6 को तुम रिलीविंग डेट तुम्हारे है? 15 मतलब तुम ऐसा डेट भरो कि तुम उस दिन आ सकते हो, मतलब मिनिमम भर दो। उसके हिसाब से फिर वो लोग जैसा समावेश का शेड्यूल होगा उस हिसाब से वो तुम्हें बुला लेंगे। अच्छा, तो वो मतलब ऐसा उनका जो फिक्स टाइम शेड्यूल का होगा उसी टाइम बुलाएंगे ऐसा? मतलब तुमने 16 फरवरी भरा, उनका बैच 21 फरवरी से, तो 21 को बुला लेंगे, ऐसा है। ओके ओके। 21 से पहले तो नहीं होने वाला, क्योंकि 40 डेज तो इसमें ही जाएगा पहले बैच।
तो बट उन्होंने सर अभी वहाँ 3 वीक्स लिखा हुआ है, वहाँ 3 वीक्स इंडक्शन लिखा हुआ है। प्रोग्राम 3 वीक्स का बोला है उन्होंने। अच्छा, इस बार 3 वीक्स कर दिया होगा। मेरे टाइम वो 2 वीक्स का था। नेक्स्ट बैच, अगर नेक्स्ट बैच में उन्होंने 5 वीक्स का किया है, अभी शायद 3 वीक्स का कर दिया है। तो उसमें मतलब मैं कुछ ज्यादा ज्यादा डेट भरूंगा, 2 वीक ज्यादा टाइम ले लूंगा, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा रिलीविंग डेट में, और उसमें फर्क रहेगा तो मतलब ज्वाइनिंग डेट फर्क में। ऐसा रहेगा कि उनका बैच अगर 3 बैचेस में उन्होंने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, तो फिर तुम्हें तीसरे बैच में बुला लेंगे। अगर अगर ट्रेनिंग उनका शेड्यूल खत्म हो जाएगा तो तुम्हें सीधे पोस्टिंग दे देंगे। फिर बाद में कभी 6-8 महीने बाद समावेश होगा तो तुम्हें वापस बुला लेंगे। ओके ओके। ओके। तो एक क्वेश्चन है संतोष का। संतोष, आप माइक ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिएगा। संतोष कुमार। Yes, sir, I'm here. ओके, सो वीडियो ऑन करिए प्लीज। स्विच ऑन योर वीडियो संतोष। एंड विच प्लांट यू हैव बीन अलॉटेड इन आरसीएफ, थल और ट्रॉम्बे? यू आर नॉट ऑडिबल संतोष। Am I audible now? Yes, you are audible. Please. Which plant you have been allotted? थल और ट्रॉम्बे? Sir, thal. ओके, तो थल तो मयूरा रामटे के मैम है ना, उनको मेल कर दीजिए आप, ठीक है, एचआर को। अपने आरसीएफएल का जो भी कैंडिडेट है वो कैंसिल कर दीजिए। विच फ्रॉम फ्रॉम मैकेनिकल, राइट? यू आर विच ब्रांच संतोष? मैकेनिकल ना? Mechanical. दैट आई एम आस्किंग, ठीक है। यू कैन यू कैन क्लियरली मेल टू मयूरा मैम, डोंट, नॉट एन इशू इन इट। ओके। Okay, sir. Okay. एचआर से आया होगा ना, rectt.hr@, लाइक दैट मेल हैव बीन कम, कैंसिल कर दो, कोई इशू नहीं है। Okay, sir. डायरेक्ट उन्हें मेल लिख दूंगा कि मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये मत करिए कैंडिडेट कैंसिल, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीजन, बिकॉज आई हैव गॉट ऑफर फ्रॉम अदर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आरसीएफएल में एक्सटेंशन है। प्रीतम सूर्यवंशी भी है, उनको भी थल मिला था, तो प्रीतम सूर्यवंशी का भी एचपीसीएल में हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आरसीएफ नहीं आ रहे हैं। ओके, नॉट एन इशू। ओके ओके सर। ओके थैंक यू नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट सर, हम लोग चलते थोड़ा समावेश के ऊपर। ओके, तो सर साजू। सर एक डाउट मेरे लिए सर, ये जो पर्सनल डिटेल मैं भर रहा हूँ एम्प्लॉय फॉर्म में, जिसमें जिसमें स्टार है, क्या मैं उसी को भरूँ, बाकी छोड़ दूँ? ये सब भरो ना, पूरा भरो। वो इंपॉर्टेंट है, स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, राइट? अच्छा, लेकिन मैं भरूँ पूरा? और सर एक और, जैसे मैं एक्सटेंशन लूंगा तो लाइक एक्सटेंशन के बाद 1 हफ्ते के बाद मेरे को रिलीविंग लेटर आएगा, तो मैं ज्वाइनिंग डेट में क्या 18-19 जनवरी डाल सकता हूँ? मतलब उसमें मुझे वही टेंटेटिव डेट डाल देना जिसमें मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ज्वाइनिंग डेट, राइट, ज्वाइनिंग डेट। ओके, जो ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें मुझे वही डेट डाल देना जिस दिन मैं वहां टेंटेटिवली पहुंच ही जाऊंगा अपने यस रिजल्ट में। यस ठीक यस। है, ओके, थैंक यू सर, आप कर सकते हैं। तो सर अब हम लोग चलते थोड़ा समावेश के ऊपर, है ना। क्या है ये समावेश? बच्चों को समावेश के बारे में थोड़ा पता नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे क्या होता है समावेश में, कितनी फैसिलिटीज होती है, पुणे में होता है, बॉम्बे, अलग अलग जगह पे होता है ना। थोड़ा इसके ऊपर चलते हैं। हाउ डिड यू एंजॉय साजू समावेश? यू टेल मी, हाउ वाज इट? Actually, Chamavis is really, you can go and you can feel. If I am saying that now, you will not get the joyful. You will go, you will enjoy all the facility of HPC. They will show, Chamavis is like, they will show who they are. Actually, all of us will be happen on symposiums only. Then the hotel will be a very peaceful place. It is a top of the hill. You can go and enjoy. Then first 2 weeks we will have some introduction about HPCL and all. All Saturday Sundays. In all Saturday Sundays they will conduct some programs and anything. They will show what are facilities they have. They have some dance program. They will conduct some carnival. They will conduct some commonwealth games also. They will conduct. So every day they will make you engage. There is no issue on that. In some ways, it's the best place you can find really your good friends for staying in that corporation. That's most important thing. Then just to go and enjoy. That's the best thing. So that around 1 month you will get some ways. That is the best time. You can go everywhere. You can eat whatever you want. They will provide all the things. You can't even imagine. So that much will be some ways. It will be very grateful. That will be you can carry that for lifetime. Samavis is a lifetime carrying moments you can create. कुलदीप, So, हाँ, यस,
Okay. So once you guys can go now, you can enjoy everything, the climate, that food, the way they are steering you, the way they are occupying you, the way they will make you to participate, they will make a dance program, everything. They will make for games, everything they will make you to enjoy. They will give all the things for you to enjoy. Only thing is you can go and enjoy. That's the thing. Then go and participate and whatever talent you have now, you have to showcase and entertain others also. ओके, तो बेसिकली गाइस मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब ही होता है समावेश, उसका नाम है समावेश, राइट। इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब ही होता है समावेश, ठीक है। आप लोग में से काफी कंफ्यूज होंगे। अभी आईओसीएल में कैसा होता है, जैसे सीसीआईएम होता है आईओसीएल में, ओके। तो अभी आईओसीएल का चल रहा है 21 डेज का होगा। आप लोग के काफी फ्रेंड्स भी हो गए जो आईओसीएल में, मतलब पहली बैच का तो खत्म हो गया, 7 से लेकर 25 तारीख, 7 से लेकर 25 तारीख तक 21 डेज का वहां पे चलता है आईओसीएल में। अभी 27 और 28 से दूसरी बैच का स्टार्ट हुआ, तो वहां पे भी 5 स्टार होटल मिलता है, 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट था, है ना। तो यहाँ पे इन HPCL डू यू गेट 5 स्टार होटल ट्रीटमेंट और दे जस्ट दैट I have seen the videos like I think some for so initially they will give 5 star. They will give more. They will more make you more comfortable. That there is no issue on that. They will give 5 star. No issue. In 30 days they will treat you like a king. That's the thing. that is the best part. After that they will give all the works. Some of which they will treat you like king. Yes, yes. Yeah, that's the time they will showcase who they are. Right, right, right. So that's what I feel. Whenever a hotel I will go, and you will say I'll make HPCL employee means they will maintain that standard. Yes, 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 yes. राइट, ओके। तो थोड़ा ऊर्जा सर, आप तो ऑलरेडी 1.5 साल वर्किंग है ना, तो थोड़ा वर्क प्रोफाइल के बारे में सर बताइए आप। कल मैं आपसे मिल नहीं पाया, मैं आया था चेंबूर बट फिर टाइम नहीं था मेरे पास, ओके। तो ऊर्जा सर थोड़ा आप बताओ कि वर्किंग प्रोफाइल कैसा है ना, मुंबई में, मुंबई रिफाइनरी का, राइट। किस तरीके से वर्किंग होता है यहाँ पे, कितना वर्कलोड है ना, वर्किंग कल्चर कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और ज्वाइन करने के बाद घर भर मिलता है या HRL लेना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ओवर टू यू। मेरी ज्वाइनिंग के टाइम समावेश 15 डेज का होता था, फिर इस बार उन्होंने 5 वीक्स का किया, और अभी जैसे आप लोग बता रहे हो 3 वीक्स का हो गया है। समावेश के एंड में लास्ट 2 डेज में आपको पोस्टिंग मालूम चलती है, मतलब मेरे टाइम तो ऐसा ही था। अभी पिछले बार उन्होंने 1 हफ्ते पहले बता दिया था, 2 हफ्ते पहले। और इस बार तो अभी उन्होंने लोगों ने चॉइस भी लेना शुरू किया है कि आप लोग किस SBU में जाना चाहते हैं। SBU इज बिजनेस यूनिट, जैसे ल्यूब्स है और डायरेक्ट सेल्स है, मतलब आप इंडस्ट्रीज को पेट्रोल और डीजल का सेल्स कर रहे हो। रिटेल सेल्स है जो पेट्रोल पंप होता है। उसके अलावा LPG है, LPG का ऑपरेशंस है, यहाँ पे LPG प्लांट है, या उसका LPG सेल्स है, जो आपको LPG सिलेंडर्स हमारे इंडस्ट्रियल होते हैं और डोमेस्टिक होते हैं उनको उनकी सेल्स पे देखना होता है। उसके अलावा पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस एक जगह से दूसरी जगह पेट्रोल डीजल ट्रांसफर करने के लिए काम आती है। फिर टर्मिनल्स और डिपोज है जहाँ पे पेट्रोल स्टोर होता है, फिर वहाँ से डिफरेंट पेट्रोल पंप्स में जाता है सेल के लिए। उसके बाद एविएशन है, जो हम लोग फ्लाइट्स को, एरोप्लेन्स को पेट्रोल देते हैं, डीजल देते हैं, जिससे भी वो, उनका तो एक अलग ही फ्यूल है, ATF बोलते हैं उसको, वॉट रिफाइंड है। उसके अलावा एक इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट है, जिसमें आप लोग नए नए टर्मिनल्स, डिपोज, बिल्डिंग्स जो भी बनाना हो, नया कंस्ट्रक्शन होता है, वो ये डिपार्टमेंट देखता है। फाइनली हेडक्वार्टर्स में भी लोगों की पोस्टिंग होती है। हेडक्वार्टर्स में बहुत डाइवर्सिफाइड डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें भी लोगों की पोस्टिंग होती है। लास्ट में 2 रिफाइनरीज है। HRL पता नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, शायद नहीं भेजना चाहिए। तो एक विशाखापट्टनम रिफाइनरी है, एक मुंबई रिफाइनरी है। ऐसे डिफरेंट जगहों पर पोस्टिंग मिलती है। वो अभी कितना चॉइस को वो लोग एक्नॉलेज करते हैं मेरे को नहीं मालूम। शाजू को मालूम होगा, उनके बैच से ऐसा चालू किया है, मेरे बैच में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद घर के आसपास पोस्टिंग मिल जाती है, 50% लोग को तो मिल जाती है, ये देखा है मैंने। और जो मुंबई का है उसको तो डेफिनेटली मुंबई में मिल जाती है, क्योंकि मुंबई में बहुत, मतलब 4000 एम्प्लॉयज है, इतने ऑफिस है यहाँ पे, तो उनको मिल जाती है। इवन महाराष्ट्र वालों को भी आसपास मिल जाती है। वर्क लाइफ महाराष्ट्र बैलेंस, वाले सर, अदर कौन सा लोकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में ही रहेंगे। वो महाराष्ट्र में तो मल्टी मतलब इवन मुंबई में डिपोज है, टर्मिनल्स है, एलपीजी प्लांट्स है, वडाला टर्मिनल है, मुंबई रिफाइनरी है, हेडक्वार्टर्स है, एचआर के डिपार्टमेंट्स है। तो मुंबई में तो बहुत सी चीज़ है, डायरेक्ट सेल्स है, रिटेल सेल्स है, मुंबई में सब कुछ है। तो मुंबई के आसपास भी बहुत कुछ है। तो महाराष्ट्र वालों को तो महाराष्ट्र में मिल जाता है। मेरे जितने भी मेरे बैच में महाराष्ट्र के थे, सब सब लोग यहीं पर है, महाराष्ट्र में ही है, घर के पास है। और डिपार्टमेंट कौन सा लर्न मतलब डिपेंड करता है कि आपका संतोष से आपका बैकग्राउंड क्या है। मोस्टली केमिकल वालों को रिफाइनरी भेज देते हैं, दोनों में से कहीं पे भी। और दूसरा, मतलब आप अपने डोमेन में ही काम करना चाहते हो जिसमें आपने पढ़ाई की है, तो वो आपको, अगर आप मैकेनिकल हो तो रिफाइनरी में आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल हो तो रिफाइनरी कर सकते हो, सिविल का रिफाइनरी है, इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स है, ये दो जगह मतलब आप कोर कॉम्पिटेंसी जो है उसमें आप काम कर पाओगे। बाकी जो मार्केटिंग प्रोफाइल है उसमें आपको तो सिविल मतलब इंजीनियरिंग का तो कोई भी काम नहीं है, प्योर सेल्स मार्केटिंग इस तरह की प्रोफाइल है। तो वो आपको ट्रेनिंग में हर डिपार्टमेंट का काम बताएंगे, क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या हमारा आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा। तो जब चॉइस मांगेंगे तो आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेट मतलब ऐसा ज्वाइनिंग का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले बेसिस पे रहता है, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए होल्ड करके रखेंगे। बट मुंबई वालों को तो मुंबई मिल जाता है। ओके, डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्या क्वेश्चन था नेक्स्ट? सर ये इस साल जैसे जब ऑफर मतलब ऑफर आया है, इसमें सर मेडिकली अनफिट दिखाया है। तो सर जैसे मेडिकली अनफिट दिखाया है ना, इसमें सर री मेडिकल टेस्ट वगैरह कुछ होता है? जैसे री अपील कर सकते हैं, भी आईओसीएल में री अपील करने का उनको मौका मिला है, तो क्या मे, एचपी? हाँ। मेरे बैच में दो लोग थे, उनको हियरिंग का कुछ प्रॉब्लम बता के रिजेक्ट किया था। बट हाँ। उनको पहली बार ऐसे पता चला कि उनको ऐसी प्रॉब्लम है। अभी मेडिकल के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है, ऐसा नहीं है कि एक हॉस्पिटल रिजेक्ट कर दिया तो हर हॉस्पिटल में उसको रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। तो हाँ। अगर उसको पहली बात तो जिसको भी रिजेक्ट किया है वो मेल कर सकता है कि आप मेरे को रिजेक्शन का रीजन बता दो, फिर वही रीजन वो चेक करा सकता है अपने आसपास के दो तीन हॉस्पिटल से जो रेप्यूटेड है, तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि हम्म, मेडिकल का बुखार है तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल पे भी होगा, उस हॉस्पिटल पे भी होगा। right. तो वो करके वो मेल कर सकता है। और उसके बाद क्या करना है मैं रिकॉर्डेड सेशन में तो नहीं बता पाऊंगा, बट ऐसा कर सकता है। ओके, ठीक है। अब किसका कोई डाउट है क्या? ओके, तो लगभग मैंने सारे के सारे डाउट्स ले लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सर इस बार मेडिकल अनफिट दिखाया है। मतलब ये पिछले साल भी ऐसा रिजल्ट किसी का देखा नहीं कि मेडिकल अनफिट दिखाया। और जब उन्होंने मेल किया तो काफी कुछ लोग को आया है, स्कॉलरशिप करके आया है, स्प्रिंट आई क्या है, आई वॉज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू स्क्विंट इन आई। मतलब आईयूसीएल में तो इतना ये था कि टेम्प जैसे मेडिकल में 79 सेंटीमीटर जो मिनिमम सेंटीमीटर है, चेस्ट जो होती है वो 79 सेंटीमीटर उसका है। अब बच्चों को 75 सेंटीमीटर है, उनको परमानेंट अनफिट कर दिया, परमानेंट अनफिट दिखाया। मतलब 75 सेंटीमीटर 79 सेंटीमीटर टेम्पोररी दिखाना चाहिए था, राइट? मतलब लिटरली आई वाज आल्सो शॉक कि 4 सेंटीमीटर बढ़ाना, पुशअप्स पुलअप्स करके 3 महीने में बढ़ जाएगा। और जिसको डायबिटीज था उसको टेम्पोररी अनफिट दिया, किडनी स्टोन था उसको टेम्पोररी अनफिट किया। तो ऐसा मतलब काफी शॉकिंग था इस साल। नहीं लेना था तो कोई दिक्कत, हाँ। ओके, अभी मनीष कह रहे सैटरडे ऑफ रहता है क्या? देखो मनीष, हाँ, जो ओझा सर का तो ऑफ है। यस, आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। मेरे ओझा को समझ मेरे को इनके मेडिकल स्टैंडर्ड समझ नहीं आते, मतलब चेस्ट 75 और 79 उससे उनको क्या लेना देना है। बिल्कुल। सैटरडे को डिपेंड करता है आप कौन से कहाँ पे पोस्टिंग है। या अगर आपकी शिफ्ट ड्यूटी है तो उसमें 6 डेज वर्किंग प्लस 2 डेज ऑफ प्लस 6 डेज वर्किंग टू ऐसे हो रहता है। आपका जनरल शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम है तो उसमें 5 डेज वर्किंग 2 डेज ऑफ फिर 6 डेज वर्किंग 1 डे ऑफ फिर 5 2 6 1 ऐसे रहता बेसिकली दो, हाँ, वो चीज आरसीएफ में भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है कि 2 दिन छुट्टी देना चाहिए, सेकंड और फोर्थ सैटरडे। है। होना ही चाहिए। हाँ।
वहाँ पे भी ऑफ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट डाउट गाइस, और कोई डाउट्स? Actually, that's depends upon the location, sir. यस यस The offs are depends upon the location where you are getting posted. Suppose you are to get a posted in Denmark somewhere, you have to work 6 days in a week. ओके Actually, in terminal and depots, you have to work 6 hours in a week. There is no off on Saturdays. There is nothing there. So, but they will pay for something. If you are coming on Saturdays, they will for every 3 months they will pay around 20,000. They will pay. सूरज बोर से कह रहे हैं एनी अदर लोकेशन महाराष्ट्र एक्सेप्ट मुंबई। हाँ, तो मार्केटिंग में हो तो आपको तो कहीं पे भी रख सकते हैं ना, मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है, राइट? मतलब आई मीन टू से डेपो, है ना, वो तो कहीं But पे भी। actually, this locations and all, I think if you are now you are worrying about location, na, that it's no need. Maharashtra guy will be posted on Maharashtra. Now me and one more guy is joining there. He is from Northeast. Not now we both are in Chennai. So it will depends on. If Chennai can will go to Mumbai also. Wherever they will post, it's all depends upon some probability. 80% guy will get that home state posting. 10% will get the home district posting also. It depends upon how it is written. Okay, sir. But maximum if you guys are come on CBT, na, they will 90% they will post in maximum they will try in home state. If there is vacancy there, they will post in home state. So this is what they will retain our set for CBT. Maximum 80% we will get the home state. So now HPCL is more working on that. Previously it is not like that, but in current 1 or 2 years they will like working for that, posting the nearby location. If there is available is there, they will post to make you settle for 1 year or 2 year. सर नॉर्थ में मिलता है क्या पोस्टिंग? Come again? नॉर्थ में पोस्टिंग मिलता है क्या सर? That's what I'm saying. That is not a mandatory thing. If it is, that's if 10% are there from north, surely 7 or 8 will get the posting in north. That I am not sure about that 2%. So definitely, if you are in that 2% means nobody will help you. संतोष कुमार इज आस्किंग सर कैन वी आल्सो पोस्टेड टू जॉइंट वेंचर्स ऑफ एचपीसीएल, प्लीज इसके ऊपर थोड़ा बताइए, फिर मैं एक आपको बताता हूँ। ओके संतोष, है ना, इसके ऊपर मैं बताता हूँ। यस ओजा सर, आप बताइए इसके ऊपर में, क्या जॉइंट वेंचर भी पोस्टिंग होती है क्या? नहीं, जॉइंट वेंचर में नहीं होती। नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा संतोष एक बताता हूँ स्टोरी। आरसीएफ में वैसे हेवी वाटर प्लांट है जो डीआई ऑपरेट करते हैं जिसे, ठीक है, डिपार्टमेंट मतलब बीआरसी बेसिकली ऑपरेट करती है उसे। अब जो हमारे सीनियर्स है बेसिकली वहाँ पे 5-5 ऑफिसर्स बीआरसी के हैं आरसीएफ में, राइट। अब बीआरसी बच्चा क्यों ज्वाइन करता? ऑलमोस्ट सारे सारे बच्चों के लिए बीआरसी एक टॉप लेवल है। आईएएस, अगर आईएएस नहीं जाना है तो क्यों बीआरसी ज्वाइन करेगा? फॉर केमिकल तो इट्स ड्रीम कम जॉब, राइट, और सबसे टॉप मोस्ट जॉब है। अब जो सीनियर्स है बेसिकली बार्क ट्रेनिंग स्कूल में उनका ट्रेनिंग भी हुआ, उनको पोस्टिंग कहाँ मिला? आरसीएफ के हेवी वाटर में, ठीक है। अब कोई सोच सकता था कि बीआरसी का मतलब बीआरसी ऑब्वियसली उनको बीआरसी का प्लांट मिलेगा, है ना, बट उनको क्या मिला? आरसीएफ में हेवी वाटर का जो प्लांट है, हाँ ऑलमोस्ट वो इसी का है, बीआरडीआई का। तो ऐसा था, एंड मतलब ऐसा है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द लक टू लक बेसिस। बट जॉइंट वेंचर्स में आपको नहीं मिलेगा, डोंट वरी, इन एचपीसीएल ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बट वो किस्मत की बात थी। ओके, फिजिकल फिटनेस का कोई डाउट है तो चलो, ये तो कोई मतलब नहीं, हो गया, आप फिट हो ना, फिजिकल फिटनेस, राइट। तो हो गया ऑलमोस्ट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस के ऊपर में कोई डाउट? सर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांसफर्स? सर ट्रांसफर्स के ऊपर में थोड़ा बता दीजिए। इफ सर, इफ यूज मार्केटिंग मैनेजमेंट कोड क्वार्टर एचआर meeting in actually. यस प्लीज। There actually transfer will be happen every 3 years. Actually normal, that will be normal transfer every 3 years. If there is some vacant inside that zone will be, they will immediately transfer. So transfer, definitely you will transfer after 3 years. You may get any location wherever you want to go, but maximum 4 years you can stay in one location, not more than that.
So if they are posted in south means actually in HPCL you have two they will give you two chance to change your location wherever you want in your lifetime. If suppose if you are posted in Chennai, if you want to go to Mumbai means in your lifetime you can go to that location one time, two times as your wish. So that two times you have to use that wisely. When you want to go to where, that's the thing. If you want to go immediately or if you use that laterally. If suppose if you are in Chennai, if you are applying Mumbai now, if definitely there is a vacant, they will definitely transfer. So nothing, there is no fault or like that. ओके, तो ऑलरेडी सर ने वीडियो बना रखा है, केतन सर ने, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने तेजस आपका डाउट ले लिया, मैं ग्रुप पे लिंक भी शेयर कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। बहुत बहुत डिटेल में बताया सर ने क्या पक्स होते क्या नहीं होते। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट? ओके, तो शैल वी कंक्लूड? ओके, ठीक है। तो गाइस फिर से ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, इस समावेश को एंजॉय करिए, कोई डाउट्स होते हैं तो ग्रुप पे पूछिए, है ना। और एंड सभी लोग को इस सेशन का लिंक भेज दीजिएगा, जो भी देखना चाहता है, जिसको भी जो भी डाउट्स है। अच्छा सर एक और डाउट है, जैसे मैं इफको फर्टिलाइजर में हूँ, मेरा बेसिक पे थोड़ा ज्यादा है, 55,000 है, ऑल्दो यहाँ पे कार अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या मुझे पे प्रोटेक्शन मिल सकता है या ऐसा कुछ नहीं होता? आप कौन से ब्रांच से, केमिकल से? इलेक्ट्रिकल से हूँ। इलेक्ट्रिकल से हो? कौन? इफको में हूँ सर मैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको महारत्ना कंपनी में आना है या फिर कोऑपरेटिव कंपनी में रहना है। नहीं मैं क्या पूछ रहा सर, क्या मुझे पे प्रोटेक्शन मिल सकता है अगर मैं HPCL ज्वाइन करूँ तो, या ऐसा कुछ नहीं होता? जैन तुम ये इलाहाबाद वाले इसको हो गया? नहीं इलाहाबाद में नहीं हूँ सर, मैं अहमदाबाद वाले इफको में हूँ। ओके, गांधीधाम वाले ना? नहीं अहमदाबाद, ये गांधीनगर के पास, करेक्ट। गांधीधाम, वही कह रहा हूँ, गांधीधाम। नहीं वो तो कांडला है सर, वो दूसरा है, वो कांडला है, ये कलोल है। अच्छा, कलोल वाले में, ठीक है समझ गया। कांडला में भी है ना एक इफको, तो नहीं सर ऐसा एक्चुअली इफको में आपको पता है 1 साल अप्रेंटिस पे रहता है 25,000 पे, उसके बाद फिर सीधे 55,000 की बेसिक कर देता है। 35 का 55 है? हाँ 35 के बाद 55,000 की बेसिक, लेकिन इफको में कोई कार अलाउंस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, बट सैलरी अच्छी है, और 55 के बाद 2 साल के बाद सीधे 70 बेसिक कर देता है। तो पर्क्स अच्छा है जयंत। ओके, आप मेरे को मिलना, मैं आपके साथ एक सेशन कंडक्ट करूंगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का भी इफको का जो वैकेंसी आया ना, उसमें डाउट, तो आप मेरे को मैसेज करो, एक सेशन उन बच्चों के लिए आप अरेंज करवा दो, ठीक है। आपके लिए हम लोगों ने HPCL का करवाया, आप उनके लिए इफको का करवा दो, ओके। बट सर इफको के बारे में बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे नहीं कह सकता। इफको के बारे में आपको पता ही है ऑलरेडी, वहाँ पे लाइक सेटिंग जैक्स बहुत चलते हैं, यू नो वेरी वेल। नहीं, उससे मतलब नहीं, मेरे को पर्क्स वगैरह से इम्पोर्टेंट वो, ठीक है। हम ठीक है सर, मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगा मार्गदर्शन पे, ठीक है। बिल्कुल, मेरे को मैसेज वही नंबर पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो एंड करते हैं गाइस। ओके, थैंक यू सर। वेलकम संतोष। गाइस मार्गदर्शन, हाँ तरुण, ऑलरेडी हम लोग तो है ना, HPCL का टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन लॉन्च करते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो ना, कितने सारे बच्चे इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन हुआ है। पिछले साल 35 बच्चे ऐसे थे जिनका मेडिकल सिलेक्टेड थे, एट द एंड 18 बच्चों का फाइनल सिलेक्ट हुआ। सब HPCL के जो मेंटर्स है हमारे, ओझा सर एंड केतन सर, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग को डील करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस में। इन्हीं की वजह से बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इस साल भी काफी बढ़िया रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चे अभी आप लोग बता भी नहीं रहे हो किन किन का हो गया सिलेक्शन। कुलदीप शर्मा आज बताया, धन सिंह तोमर इनका पता चला, प्रत्युष राज है ना, अनुरंजन, प्रथमेश, देवांजना, राइट, और आकाश, है ना। काफी सारे बच्चे, ये पेड स्टूडेंट्स ये लोग, ठीक है। तो आप लोग गाइस अभी अपने अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिएगा कि मार्गदर्शन है, ऑल द PSU मेंटर्स आर देयर, यहाँ पे फूल नहीं बनाया जाता है, राइट, है ना। देखा प्रथमेश, आपका हो गया, मैंने क्या कहा था, राइट। एंड एक और थे प्रथमेश, आपको पता है, दिवेश वर्मा। Yes, sir. Yes, sir. You know that, right? He was Yes, also sir. he has also taken the course of other platform, right? Yes. I didn't stop him. Yes, sir. stopped you, and you are here, Yes, sir. Thank you, sir. है ना। Thank you so much. Right. That's why मार्गदर्शन is known for, ठीक है। तो चलो गाइस एंड करते हैं सेशन को। थैंक्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, फ्यूचर जर्नी। कोई डाउट्स होते हैं तो बेझिझक आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, चलेगा।
डन।